यार आज तक ये नहीं समझ आई भी ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੰਦ ਦੀ ਦਾੜ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ क्या ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਜਰਸੀ ਪਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਏ अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ? ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ ਆਰਫ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ओ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ अच्छा ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ठीक है ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ओके ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾ ਬਈ ਜਵਾਨਾ हाँ हाँ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਖਿੱਚੀ ਨੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਬਈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੀੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਦਾੜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਮੰਤਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਾਮਰਾਨ ਟਿਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਰਾਚੀ ਆਇਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ओके ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਇਆ अच्छा ਆਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਖਾ ਕਿਹੜਾ ਦੰਦ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਗਾ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਗਾ ਬਣਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰੋ हाँ ऐसे अच्छा वो फिर मैं वही करके बुग्गा बनाया हाँ। उन्होंने मारे सुन अच्छा दाढ़ बाहर आ गई अच्छा जी सर मैं क्या सर हैरान कर देते ने बुग्गा बना के घसुन मार के कि मैं दाढ़ बाहर काट ली जे हाँ मुझे कहते ने पता है हमारी किस पार्टी से ताल्लुक है हाँ। मैं क्या हाँ जी सर हाँ। कहते ने हमने अपनी हरकतें बदली हैं तरीके नहीं बदले जी सर मैं क्या डॉक्टर साहब ना थे टिसोरी साहब चंगे रहे ते शुक्र सुकून हो गया चले बेहतर पर है। दाढ़ दर्द होवे ना जी जी पूरी बॉडी च दर्द होंदी बिल्कुल हाँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ते माशाल्लाह काशिफ महमूद साहब ने बुलाया थे नहीं। कफील ड्रामा चल रहा है नहीं, आजकल सही काशिफ काशिफ निसार साहब नहीं है। मोहम्मद काशिफ साहब यस मेरे बेस्ट फ्रेंड है ने अच्छा यूसीएल लंदन दे विच क्लास यार ना करे सर इकट्ठे पढ़े गए ना करे 3 बारी माशाल्लाह एमपी बने Yes. पूछो क्यों क्यों विराट थोड़ा नाल सी ओ सर जी पहला इलेक्शन जितया दूसरा भी जितया तीसरा भी जितया ओए इस बारी पै ने वोट ओए 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 पहले भी बड़े वोट पैंदे ने हाँ। लेकिन इस बारी वोट पए ने वाह ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਆਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਨੇ मोहब्बत वाले वोट माशाल्लाह आने वाले वक्त दे सीएम ने ओए होए हो सकता है हालात वाकई एक मिनट ही बदल सकते हैं सिनेरियो बदलते ओए होए हैं होए। लगती है ते माशाल्लाह बरजाई भी सुने इस बार इलेक्शन लड़ेगी कौन बरजाई बरजाई इस बार इलेक्शन लड़ेगी अरे नहीं सर एमपी है बरजाई लड़ेगी भाईजान एमएलए अरे नहीं ऐसा नहीं होगा देख लेना कौमी असम्बली च होणगे ਉਹ सूबाई असम्बली च नहीं हो सकता मैं सोच रहा मैडम ने मैं किधरे वेख्या है जी बिल्कुल ननकाना वाली बरजाई तो नहीं नहीं ये वो नहीं ये है ही नहीं लाहौर वाले ने माया जी माया जी यही है ओ माया जी ने बुलाया जे जैसे ही नहीं अच्छा जी सर ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ आहा ਬਤਰੀਆ ਸਾਡਾ आहा ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਾ ਦਾ आप उनके भी फ्रेंड हैं ਜੀ ਸਰ अच्छा ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਰਹੇ ਨੇ चल ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ अच्छा ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਨ ਕੋਈ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ओए होए होए ਓਏ ਓਏ ਹੋਏ ਐਸਾ ਜਿੱਤਿਆ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਨਰਗੋਲੀ ਵੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਸੀ ਬਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਠੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ तमाम ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਰ सर माशाल्लाह चाय कॉफी सारा कुछ ਸਰ ਡਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਸਰ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਜਣ ठीक है वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम अलियास सेठ है सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर अख्तियारात कम और ज़िम्मेदारी ज़्यादा हो तो आप फिर भी सियासत जारी रखेंगे? इख्तियारात कम और जिम्मेदारी ज्यादा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोग
माशाल्लाह सारे स्टूडेंट्स हैं। निज़ाम को समझना चाहिए एज अ पॉलिटिशियन, जब आप असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली आप लेजिस्लेटर होते हैं, आप कानून साजी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक्सपेक्टेशन ये होती है कि जो लेजिस्लेचर का बंदा है या जो कानून साजी करता है वो रिस्पॉन्सिबल है सब कुछ करने के लिए। आई मीन ऑल दो बुक्स डोंट से दैट। तो अगर आप उस कंटेस्ट में देखें, हाँ, क्योंकि बराह रास्त कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक पार्लियामेंटेरियन के पास नहीं होती, क्योंकि उसने कानून साजी करनी होती है। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेशन लेवल ज़्यादा है तो यकीनी तौर पे जो आप बात कर रहे हैं कि वो फिर आप यू फील लेफ्ट आउट, और अनलेस के कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव रोल हो तो फिर तमाम तर मामलात को अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता। सो आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सैयद उस्मान। सर, मेरा आपसे सवाल ये है, हुकूमत का कहना है कि हम हर जान बचाने के लिए पुरअज़म है, पर शर्त ये है कि जान लाहौर में हो। नहीं, नॉट एट ऑल। आपका ताल्लुक तो ननकाना साहब से, आप बताइए। ऑफ कोर्स सर, ऐसा हरगिज़ नहीं है। 1122 जान बचाने से आई फील के इमरजेंसीज एंड इस तरह की सिचुएशन में, मेरा मतलब है हुकूमत उसको कैसे हैंडल करती है, तो मेरा ख्याल है इसकी तो हर इंसान गवाही देगा। बल्कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए वो अक्रॉस पंजाब काफ़ी, आई मीन वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो हम देहात में रहते हैं तो वहाँ पे भी 1122 का सेटअप जो है वो उतना ही इफेक्टिव है, बल्कि लाहौर में ट्रैफिक की वजह से देर सवेर हो जाना पॉसिबिलिटी है। देहाती इलाके में ऐसा हरगिज़ नहीं है। सो जैसे ही आप 1122 को कॉल करते हैं तो रिस्पॉन्स टाइम इज़ रियली कूल। अब नेचुरली पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, जो बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं लाहौर में मौजूद हैं, नेचुरली वो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन 80% जो मामला है वहाँ पे केटर हो जाते हैं। लेकिन हेड इंजरीज़ और कार्डियो के जो मामला हैं उनके लिए लाहौर है। तो आई थिंक ये ज़्यादा सही होगा कि लाहौर में जान बचाती है हुकूमत, लाहौर में जाने नहीं बचाती। वहाँ से सारा कुछ यहाँ पर अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होता है। सो आई थिंक काफ़ी मौसर है अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम 1122 वाला। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मेरा मैम CA सवाल है कि क्या कभी रील बनाते वक्त आपका मोबाइल नीचे गिरा है? बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, तो फिर क्या करती हैं? फूंक मार के दोबारा उठा लेती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान असलम है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली सियासी शख्सियत कौन है? असल में मुझे, अगर मैं फ़र्ज़ करें मूवीज़ भी देखूं या कुछ भी करूं तो इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। तो मुझे लगता है कि जितनी रिमार्केबल क्लीन स्ट्रगल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है, एक इंसान जो है उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, उसने अपनी लीगल बैटल की है। और इतने मसलन इससे ज़्यादा पॉलिटिकल रिवॉर्ड क्या हो सकता है कि मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए पाकिस्तान का बना देना, और जैसे कहते हैं कोई बाल भी भीगा नहीं कर सका। सो आई थिंक देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट कि उनसे ज़्यादा इम्प्रेसिव कोई भी नहीं है, ना हो सकता। क्या अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर है। मेरा मैम से ये क्वेश्चन था कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखती हैं या आईना? मोबाइल। और क्या देखती हैं सबसे पहले? टाइम। और उसके अलावा कौन सी ऐप सबसे पहले खोलती हैं? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। यस। ओके, और चेक करती होंगे कि मैसेज कोई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं है। उसके बाद फिर बाकी की ज़िंदगी स्टार्ट होती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक बड़ा हो गया। आप भी सर ऐसा ही करते हैं? नहीं सर, नॉट एट ऑल। अच्छा क्यों, आपको नहीं सर कोई व्हाट्सएप पे कोई ऐसे मुझे काम आते? मुझे सर ये होता है कि वो जो मॉर्निंग टाइम है ना जी, वो इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। तो आप उठते ही नमाज़ पढ़ते हैं एंड देन मुझे पड़ी होती है कि मैंने अपने खेतों में कब जाना है। अच्छा। सो फ़ोन जो है वो मेरा हाल है मैं बहुत अर्ली भी, अगर मैं कोई 8 बजे करीब, मेरा मतलब है फ़ोन, क्योंकि मुझे पता होता है कोई चाहिए खबर तो आनी नहीं है, जिंदगी लेट जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील नासिर है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि अगर आप खुद वोटर होते तो क्या आप खुद को वोट करते, और क्यों करते अगर करते तो? मैं डेफिनेटली अपने आप को वोट करता जी, बिकॉज हर एक इंसान के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो मैं काफ़ी वेल सेटल्ड था अब्रॉड, वहीं से ही मैं पढ़ा भी और काफ़ी अच्छा था निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पे। जब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैंने कभी फॉर एग्जांपल कोई नेशनलिटी हासिल करने की कोशिश नहीं की। अमूमन जैसे स्टूडेंट्स जाते हैं, मेरे अपने बच्चे भी गए हैं, शायद वो भी कोशिश करें, तो मैंने कभी कोई पासपोर्ट चेंज करने की कोशिश नहीं की, कभी कहीं पर सेटल होने की ज़रूरत महसूस नहीं की। बिकॉज आई थॉट कि एक दिन आके, बिकॉज आपको पता है राइटली और रॉन्गली हमारे यहाँ अभी तक एक थोड़ी फैमिली पॉलिटिक्स चल रही होती। सो आई ऑलवेज न्यू कि मैं इसके अंदर एक अच्छा किरदार अदा कर सकता हूँ।
तो जब मुझे अल्लाह ने पहली मरतबा मौका दिया 2013 में, बिकॉज मेरी डिग्री इकोनॉमिक्स और प्लानिंग की थी, तो मैंने एक प्लान के साथ पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को यानी 5 साल में टोटली रिफॉर्म किया। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वोट जो है वो बड़ा खूबसूरत एक हक है, अल्लाह ताला ने तो किस्मत बनाई है, लेकिन आप उस एनर्जी को डाइवर्ट करते हैं कि आपके लिए कोई क्या करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे वोटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारी मुल्क की जो पसमानदगी है उसकी मेन वजह ये है, बिकॉज हम परफॉर्मेंस नहीं देखते और हम इधर उधर की बातों में ज़्यादा लगे रहते हैं कि कोई दिखता कैसे है, इसकी बरादरी कौन सी है, ये तो ऐसा है, ये तो डायलॉग बड़े अच्छे बोलता है, उसके पीछे कोई वज़न हो ना हो, ये तो झूठ बहुत बोलता है, या कुछ भी। सो आई बिलीव इन परफॉर्मेंस। सो अगर 13 से 18 में मैं परफॉर्म ना करता तो शायद मैं अपने आप को वोट ना करता, लेकिन 13 से 18 की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पूरा ज़िला गवाह है कि मैंने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया। और इसी वजह से जब 2018 में किसी वजह से हमारे हलके बदल भी गए तो उस हलके की रेपुटेशन की वजह से वो बड़ा टफ इलेक्शन था PMLN के लिए, तो उसमें भी अल्लाह ने कामयाबी दी। काशा भाई दा जी माशाल्लाह इलाके च बड़ा मरोब है जी, मैं इन्हां दा नाम लैके 2 किलो दही मुफ्त लै आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्कान है। मेरा मैम से एक क्वेश्चन है कि आप नए फैशन ट्रेंड्स खुद बनाती हैं या फॉलो करती हैं? मैं खुद भी बनाती हूँ और फॉलो भी करती हूँ अगर कोई अच्छा लगे तो। ये जो आपने पहना ये खुद बनाया? खुद है। तो ये भाई भी खुद बना लिया, ये कोट भी खुद ही बना लिया? अच्छा, मेरे अलावा कभी किसी को और को भाई बनाया आपने? बहुत से हैं। आज यही दुख लैके घर जावांगा जी। तो आपसे जल्दी से अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं। काजो साहब आप तो खेल चुके हैं, माया जी आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज़ करना है। कहीं पे लगा कि जवाब नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं, वहाँ पे सही जवाब दिया तो सही जवाब के साथ 5000 रुपये। ठीक है जी, पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? काशिफ सबसे पहले खेलें या लेडीज फर्स्ट? वो बताएं। ठीक है, नहीं आप बताएं, आपका क्या दिल कह रहा है? आप मेरे से स्टार्ट करें। आपसे स्टार्ट करें, चलिए जी। फिर बता दीजिए माया, आपकी ज़िंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं खुशहाल खान, बहाज अली और अहद रज़ा मीर। खुशहाल खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे, एक को कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, फहद हुसैन और फवाद खान। तो सेल्फी किसके साथ है? फहद हुसैन के साथ सेल्फी है। स्माइल HSY को। और फवाद खान का फ्लोर आ गया जी। ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा और अली ज़ीशान। आई थिंक मोहसिन नवीद रांझा तो हम चांद पे छोड़ देते हैं जी। ठीक है, ये बता दीजिए किसका फ़ोन आए तो फ़ौरन उठाएंगी, किसका फ़ोन आए तो मैसेज पे जवाब देंगी, और किसका फ़ोन आए तो फिलहाल आप फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। तो किसकी कॉल है तो फ़ौरन उठाएंगी? फहद मुस्तफ़ा की फ़ौरन पिक करूंगी ठीक कॉल। है, मैसेज पे किसको जवाब देंगी? हुमायूं सईद को। और किसके ऊपर आप फ़ोन रख के बाहर जा रही हैं? थर्ड नेम क्या था? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर। ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और अली अमीन गंडापुर साहब। दोनों बहुत स्ट्रेंज पर्सनैलिटीज़ हैं, टाइटैनिक पे जाने वाली तो नहीं है। टाइटैनिक पे जाने वाली कैसी है, कौन सी पर्सनैलिटी? थोड़ी सी हीरो टाइप होनी चाहिए ना, तो वो हीरो टाइप होनी चाहिए। चलिए ये बता दीजिए कौन है जिनको टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है जनाब आसिफ जरदारी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मैं शहबाज शरीफ साहब को लेके जाना चाहूँगी, क्योंकि उनके साथ टाइम गुजार के वो जिस तरह से थोड़ी सी फ़नी बातें कर देते हैं बीच में, तो उसमें फिर वो टाइम गुजर जाएगा। कौन सी? जैसा कि सम टाइम वो स्पीच करते हुए उनको वर्ड याद नहीं आ रहे होते, जैसे कि मंजी थले डांग, पता नहीं क्या क्या। काशिफ साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब इज अ वेरी सीरियस मैन, बट बाय चांस बट द रेफरेंस हैज बिकम दिस। अब तो हो गया, ठीक है, अब तो हो गया, क्या कर सकते। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट माया आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, काशिफ उदियार और कैसर पिया। आई थिंक मैं बिलाल अब्बास को दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि अच्छा जेड़ी भरा दी नहीं बनी बिलाल दी की बननी? क्योंकि आप बता रही थी क्योंकि। अच्छा मैं भूल गई थी भाई, सॉरी। नहीं खैर आप बताइए, आप कह रही थी क्योंकि।
क्योंकि वो देखिए उनका बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और उनको मज़ीद आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, इन दोनों को काम मज़ीद करना नहीं आना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसी वो बात है, भाई देखिए। हैं, वो समझते हैं, वो समझते हैं, वो तो चले आप भाई हैं, आप डूब जाए, आप समझ गए। ये जो है इनका क्या कसूर है? आप कभी बिलाल अब्बास से मिली है? जी हाँ, एक इंटरव्यू पे मिलना हुआ था उनसे। एक इंटरव्यू मिलना हुआ था, तो उनका कंडक्ट इनसे बेहतर था। लेकिन ये पॉलिटिक्स में है, मैंने उनको अपनी डूब जाना फील्ड के चाहिए। रेलिवेंट लोगों को बचाना है ना। रेलेवेंट लोगों को बचाना है आपने, ये ठीक है। रिश्तेदारी नहीं बचाई, रिश्तेदारी, आप रेलेवेंट भी नहीं और ना रिश्तेदार हैं आप। रिश्तेदार भरा तो बड़ा नहीं जी नहीं, आप देखें जो बच गया वही रेलेवेंट साहब। सर बताइए फिर, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस है महविश हयात और मायरा खान। मायरा खान होंगी वो। सर बता दें, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर, 3 लोग मौजूद, बता दें किसके साथ सेल्फी है, किसको स्माइल है, किसको कहना है कि फ्लोर आ चुका हुआ है आपका। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ख्वाजा इमरान नज़ीर, जनाब बिलाल यासीन और राना मोहम्मद अरशद। तो सेल्फी किसके साथ है? बिलाल यासीन। स्माइल किनको दे रहे हैं? इमरान नज़ीर साहब को, और फ्लोर आ गया राना अरशद साहब का। तो उनको छेड़ने के लिए यही कहूँगा कि राना साहब बस करें आप। ठीक है सर, बता दें फिर चांद पे जा रहे हैं, किसको लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर और राणा सिकंदर साहब। सिकंदर साहब को चांद पे छोड़ दिया उन्होंने। नहीं सॉरी, उनको अपने बच्चे फेल करवाने थे, वो दूसरे मेरे पढ़ गए। अगर आप बताइए सर। बिकॉज सिकंदर इज लाइक अ यंगर ब्रदर, तो फैसल खोखर जो है वो अभी उनसे इतनी दोस्ती नहीं है, तो इसलिए चले चांद पे रह गए। सर बता दें फिर, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया, बेटे से मिलने, 7 वाली सीट खाली है, इस बार आप अकेले ही जा रहे थे, तो क्या चाहेंगे 14-15 घंटे के लिए कौन आपके साथ बैठे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब सुहेला अफरीदी और डॉक्टर फरदौस आशिक अमान। जनरल नॉलेज प्लीज। अच्छा जी, जनरल नॉलेज में चले गए हैं। सर कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3 मेन होती हैं। 3 सही जवाब है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब इसहाक डार और मोहतरमा सबा कमर। एक्ट्रेस सबा कमर। हाँ, पहला क्या चॉइस थी? इसहाक डार साहब। नो वे। ओके सॉरी, वेरी क्लियर। ठीक है, सबा कमर ही होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा माया ज़हरा, रब्बानिया शिरजील और अज़मा बुखारी साहिबा। सबसे पहले हक इनका बनता था बिकॉज ये पड़ोस है, लेकिन चूंकि इन्होंने मुझे नहीं चूज किया तो इसलिए ठीक है। माया तो देखे, माया अब आपके साथ वही हुआ जो आपने किया था। वो पड़ोसी होने के नाते मैंने, अगर मुझे चूज किया जाता तो मैं भी कर देता, लेकिन अभी ऐसा चूंकि नहीं होया, तो सेकंड राइट वो नियरेस्ट है। ओए होए, तो रब्बानिया को दे दिया उन्होंने। ये देखिए माया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी जो रेलेवेंट पार्टी की मेंबर है उन्होंने उनको नहीं दी। टिट फॉर टैट किया है ना। टिट फॉर टैट तो आपके साथ किया, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा करीब 3 वो है उसके बाद, तो उन्होंने उनको अपने दे दी। फील्ड के बंदे को नहीं, मैंने अपनी फील्ड के बंदे को नहीं दी। ओके, तो इसके बारे में क्या आपका तज्जिया है? लेकिन मैं अपनी फील्ड के रेलेवेंट बहुत पैशनेट हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं इनके तज्जिए में आप पैशनेट नहीं है। 20 साल गाल दी, अभी पैशनेट नहीं है। उन्होंने क्या? अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उनको ज़रूरत नहीं है इन लोगों को उनकी, क्या? आई गेस नहीं है। मैं इधर बैठे हुए को क्यों ना बचाऊं? ये अव्वल ख्वेश बाद दरवे। ये देखें माया, ये क्या थॉट प्रोसेस है? उनको आइडिया होगा ना कि वो खुद ही अपने आप को बचा लेंगी, ठीक है ना? अच्छा, ये आपको लगता है कि वो उनको लगेगा, मगर उन्होंने फैसला किया। रबानी आप बच गई हैं बीच में सारे मसले के। मगर काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और माया आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और काशिफ साहब, ये आप सर थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।